Hello everyone, as we were studying about the plant tissues and animal tissues. In this we have started plant tissues, and there are two types of plant tissues, meristematic tissue and permanent tissue. We have studied about the meristematic tissue and permanent tissue. There are two types of permanent tissue, simple permanent tissue and complex permanent tissue. In this, simple permanent tissue is having two types of tissues, supporting tissue and protective tissue. Protective tissue we have already studied. Protective tissue के बारे में हम बात कर चुके हैं, and now it's time to study about the supporting tissues. There are three types of simple supporting tissues: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Doing a comparative study about parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma so that it get clear to us what is the difference between them. So we are taking all these three types of cells together to study about them. Here, the first one here I have described about parenchyma cells. Now it is collenchyma, and there it is sclerenchyma tissues. Okay, the difference we will study on the basis of shape, origin, cell wall, intercellular space, maturity time, location and function. On the basis of these points, we will study about the difference between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma cells. देखिए, तो parenchyma में क्या होता है? In parenchyma the cells are large, spherical, various shapes and isodiametric. क्या होता है कि parenchyma के cells काफी large होते हैं, mostly spherical होते हैं. Isodiametric means they are having equal diameter. उनका diameter equal होगा. तो that's why definitely जब diameter equal होगा तो mostly they will have the spherical shape. और इसके अलावा और भी कई shapes में वो पाए जाते हैं. So these are also found in various shapes also. And collenchyma cells, these are mostly elongated, लंबी shape में होते हैं elongated cells. And in sclerenchyma कैसे cells होंगे sclerenchyma tissues के? Long, narrow, sclerates, elongated and fiber shape. तो mostly वही लंबे होंगे, narrow पतली होंगे, elongated लंबी shape होगी उनकी fiber shape की. तो this is the difference on the basis of shape. Parenchyma के कैसे cells हैं? Large, spherical, isodiametric. Collenchyma की elongated, sclerenchyma की long, narrow, sclerates, elongated, fiber shape. This is on the basis of shape. And on the basis of origin, parenchyma cells जो हैं those originate from the ground and protoderm meristem. वो ground और protoderm meristem से निकलते हैं जो हमारे parenchyma cells होते हैं. And collenchyma cells those originate from the procambium. वो procambium से निकलते हैं. And sclerenchyma these originate from ground meristem and protoderm procambium. sclerenchyma कहाँ से निकलते हैं? ग्राउंड मेरिस्टेम से भी, जो कि आपका parenchyma भी निकलते हैं वहां से, एंड प्रोटोडर्म प्रोकैम्बियम से. ये स्क्लेरेट सेल्स होते हैं. नाउ on the basis of cell wall की बेसिस पे देखिए parenchyma cells जो हैं those are having thin cell wall. parenchyma cells की cell wall कैसी होगी? thin होगी, and it is composed of cellulose. saccharides से composed होता है cellulose. तो cellulose is the important structural component of a cell wall. एक important structural component है जो कि cell wall के अंदर present होता है, that is cellulose. तो parenchyma cells की cell wall जो होती है वो thin होती है and composed of cellulose. But in case of collenchyma में क्या है? Unevenly thickened at the edges. collenchyma के अंदर जो edges होते हैं, जो corner होते हैं cells के, वहां पर मोटी लेयर प्रेजेंट होती है. colon at other places it is thin. तो unevenly thickened होता है ये at the edges, and it is composed of pectin and hemicellulose. और collenchyma के सेल वॉल जो है वो pectin और hemicellulose से बनी हुई होती है. hemicellulose is also a form of polysaccharide. cellulose का polysaccharide फॉर्म होता है, and pectin is also heteropolysaccharide form. It is present in the cell wall. But in case of sclerenchyma के अंदर क्या होगा? It is thick walled cell. इसकी पूरी की पूरी सेल वॉल कैसी होगी? काफी थिक होगी, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन. ये लिग्निन से बना होता है. जब आप ऊपर की बार्क लेयर को, कभी बार्क को छील के देखेंगे या उस पर कुछ किसी चीज से चोट करेंगे तो देन यू विल सी कि कुछ एक सिक्रेटरी मटेरियल बाहर आता है, दैट इज लिग्निन. तो ये थिक वॉल्ड सेल जो इट इज कंपोज्ड ऑफ lignin in case of sclerenchyma. Now see the intercellular space.
यानी कि सेल्स के बीच के अंदर प्रेजेंट स्पेस की क्या स्थिति होती है इन द केस ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के अंदर सेल्स के बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। देयर इज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट within the cells of parenchyma tissues, and in case of collenchyma there is little space present within the cells of collenchyma tissues, but in case of sclerenchyma intercellular space is absent and cells are tightly packed, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा जो स्पेशली वो डेड सेल्स होते हैं और ऊपर की कवरिंग वाले सेल्स होते हैं जो आपको ऊपर की पार्क वगैरह दिखती है, तो दीज वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस होने का मतलब नहीं होता है, वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहता है और सेल्स आपस में टाइटली पैक्ड रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं इन स्क्लेरेन्काइमा केस। एंड आफ्टर मैच्योरिटी, see what happens in parenchyma, it consists unspecialized living cells। parenchyma cells जो होते हैं these are living cells, ये living cells होते हैं unspecialized इसलिए क्योंकि इनको different functions दिए रहते हैं, किसी में ये they store the food, in somewhere they do the photosynthesis, somewhere respiration, and in some cases they help in supporting and healing mechanism। तो इस तरह से इनका जो फंक्शन है वो unspecialized हो जाता है। जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं इनका फंक्शन अनस्पेशलाइज्ड हो जाता है और ये दीज आर लिविंग सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स, बट इन केस ऑफ कोलेनकाइमा कंसिस्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, दीज आर लिविंग सेल्स, दीज आर आल्सो लिविंग सेल्स। पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा बोथ आर कंसिस्ट लिविंग सेल्स और कोलेनकाइमा की स्पेशलाइज्ड है बिकॉज वो एक पर्टिकुलर फंक्शन ही होता है जिसको वो करते हैं, दैट इज दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। तो इसलिए स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन द कोलेनकाइमा, बट इन केस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा देयर आर स्पेशलाइज्ड डेड सेल्स। स्पेशलाइज्ड होंगे, उनका फंक्शन स्पेशलाइज्ड होगा, बट दीज आर डेड सेल्स, ये डेड सेल्स होंगे, इनका फंक्शन रहेगा कि सब स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे प्लांट को, और लेकिन वो ओवरऑल लास्ट में जो ऑन मैच्योरिटी दे गेट डेड, मैच्योर होने पर वो डेड हो जाते हैं, डेड सेल्स रहते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा जो है। नाउ लोकेशन, अब ये पाए कहाँ जाते हैं ये सेल्स, अब हम देखते हैं। पैरेन्काइमा जो है दिस मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के जो भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं वहां पर पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं, लाइक इन पिथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, यानी कि रूट्स और स्टेम्स का जो बीच का पोर्शन होता है, पिथ पोर्शन, दैट इज द सॉफ्ट पोर्शन, वहां पे पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यूज वहां पे पाए जाते हैं। एंड इन केस ऑफ कोलेनकाइमा दिस फाउंड इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक इन लीव्स, petiole, veins, leaves stalks, stems of leaves, young stems and below the epidermis of stems। In case of कोलेनकाइमा देखिए ये जो सेल्स होते हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज के, ये स्पेसिफिक पार्ट्स में पाए जाते हैं, मोस्टली ये पाए जाते हैं लीव्स के अंदर, वेन्स में पाए जाएंगे, उसकी पिट्यूल में पाई जाएंगी, जो स्टेम्स होती है लीव्स की, दोज कंसिस्ट ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स, एंड जो यंग स्टेम्स होती है दोज आल्सो कंसिस्ट द कोलेनकाइमा सेल्स। और जो भी एपिडर्मल लेयर है लीव्स की और स्टेम की, उसकी जस्ट नीचे की जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स। नाउ सी द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज, ये कहाँ पाए जाते हैं? स्क्लेरेन्काइमा दीज फाउंड इन मैच्योर पार्ट ऑफ प्लांट लाइक इन वुड, इन बार्क, हार्ड एंड आउटर पार्ट ऑफ स्टेम। ये पाए जाते हैं प्लांट के हार्ड पार्ट में, जो ऊपर का वुड आप देखते हैं, हार्ड पार्ट देखते हैं, आउटर पार्ट, बार्क जो होती है, छाल जो होती है प्लांट की, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। इसलिए हमने कहा ये डेड सेल्स होती हैं, दीज आर डेड सेल्स एंड टाइटली पैक्ड रहती है, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें एकदम एब्सेंट रहता है, और सेल वॉल में क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है इन स्क्लेरेन्काइमा cells। Now see the functions, on the basis of functions, the difference between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। In parenchyma this helps in storage of food, helps in photosynthesis, do respiration, gaseous exchange, buoyancy in aquatic plants, and also provide temporary support, healing and repair mechanism। तो पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, ये फूड स्टोर करने में हेल्प करते हैं, इनके अंदर फूड स्टोरेज होता है,
ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फूड की फॉर्मेशन होती है और वो स्टोर होता है। रेस्पिरेशन होता है, मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे टेक प्लेस करता है। एंड बायोन्सी इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स में जो बायोन्सी जिसकी वजह से वो फ्लोट कर सकते हैं वाटर के अंदर, that is also created by these parenchyma cells because these are having large vacuoles present होते हैं parenchyma cells के अंदर। तो इसकी वजह से ये एक बायोन्सी देते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को जिससे कि वो आराम से फ्लोट कर सकते हैं। एंड टेम्पोररी सपोर्ट देती है प्लांट की बॉडी को। हीलिंग एंड रिपेयर मैकेनिज्म, कभी कोई डैमेज हो जाता है तो उसको हील करने में भी हील कर सकते हैं ये, और रिपेयर मैकेनिज्म भी इनके अंदर होता है पैरेंकाइमा सेल्स के अंदर। नाउ सी द कोलेनकाइमा, फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स। These provide a flexible mechanical support or elasticity to the plant parts. कोलेनकाइमा का क्या फंक्शन है? ये फ्लेक्सिबल मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, यानी कि इनके अंदर जो ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिसिटी होती है। जैसे हमने कहा कि ये पिट्यूल में पाया जा रहा है, वीन्स में पाया जा रहा है, लीफ स्टॉक में पाया जा रहा है, यंग स्टेम्स में पाया जा रहा है, तो आपने देखा है वो इजी टू मूव होते हैं। ये पोर्शन वो है जो कि इजी टू मूव है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर। तो ये किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स इन इट। एंड इन स्क्लेरेनकाइमा it provide rigid mechanical structural support to the plant, support transportation of water and nutrients to the plant। ये प्लांट को एक रिजिड मतलब टाइट मैकेनिकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। इसी की वजह से पूरी प्लांट की बॉडी, जो आप बड़े ट्रीज और देखते हैं बड़ी प्लांट्स, उनकी बॉडी जो है उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर खड़ा रहता है स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। और ये जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अंदर भी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का रोल होता है, वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब जब आप एग्जांपल देखते हैं तो स्क्लेरेनकाइमा हम समझ गए कि ऊपर का वुडी पार्ट है, बार्क वगैरह, जो दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अंदर का जो पार्ट है ये कोलेनकाइमा जो है वो पिट्यूल्स में, वीन्स में, लीव्स के अंदर, यंग स्टेम्स के अंदर हमने देखा कि कोलेनकाइमा प्रेजेंट है। पैरेंकाइमा बहुत सारी जगह प्रेजेंट है, जैसे कि स्टोरेज कर रहा है फूड का, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। तो अगर आपको पैरेंकाइमा का एग्जांपल देखना हो तो यू कैन सी अ पोटैटो। पोटैटो जो है दीज आर मोस्टली मेड अप ऑफ, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ पैरेंकाइमा सेल्स। पोटैटोज के अंदर पैरेंकाइमा सेल्स पाए जाते हैं जो कि विच स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में फूड को वो स्टोर करते हैं। एंड इन लीव्स, लीव्स के अंदर पैरेंकाइमा सेल्स ही होते हैं विच कंसिस्ट द क्लोरोफिल इन देम, दे कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस एंड हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। और फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड की फॉर्मेशन होती है, फूड को स्टोर करते हैं। तो पोटैटो को अगर आप देखते हैं तो इट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ पैरेंकाइमा सेल्स। एंड जो लीव्स होती है, लीव्स के अंदर भी जो क्लोरोफिल वगैरह क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो पैरेंकाइमा सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है।